movement for Saraswati Vandana. A very warm good morning to all the students present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to the induction program of 2023. This induction program will, you will get to know more about the college life, the various aspects the college life holds, the million opportunities that you will get in the next 2 years of your life. We encourage you to connect, engage, and make the most of this experience. And now I would like to invite Mrs. Sanjana Mittal ma'am, Deputy Director, Ashtavakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research, to kindly come up on stage to present the welcome address. A very good morning to one and all present over there. And I, Sanjana Mittal, Deputy Director from Ashtavakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research, welcome you all to this induction program for D8 Special Education students for the academic session 2023 to 25. I welcome on behalf of the entire Technia group of institution over here, and in this coming 1 hour you will get to know and learn what all facilities, what all departments you have, and how do we proceed at Ashtavakra, how and what activities take place. So before starting the induction program, we just made you see the glimpses of some of the activities. So you saw in the activities, we showed you alumni meet, award ceremony, then freshers party, which you are going to soon be getting a charm to celebrate within 1 month. Okay? And apart from that, you will also come to know we keep on holding CBR programs, CRE programs, and other things. So I would like to welcome you once again, and I would like to introduce all our faculty members over there. I would like to call you up on the stage. First of all, from ASC department, Anupma Gupta ma'am, please kindly come up on the stage. So we are having department wise, and we are running diploma courses. So ma'am, she is the head of NSS departments and ASC departments. Along with her, we have in ASC departments and ID departments, Hasib sir, who is an examination in charge. Kindly come up on the stage. So he is taking charge of all the examination activities that take place. Sandeep Upadhyay, head of VI department, kindly come up on the stage. Along with VI department, we have other faculty members also, Dinesh Bindal sir and Mansa ma'am and Ram Tirath. So they are the 4 faculties over there. They will be taking charge of VI department, because simultaneously examinations are going on at Ashtavakra Institute. So few members over here, we thought of to have induction program. That is why all of us are there on the stage. We also have MD department, and heading up with MD department, we have Vikas sir. Kindly come up on the stage, please. So Vikas sir is from MD department. Khyati Kohli ma'am, again assistant professor of ID department. Kindly come up on the stage. Some of the faculties will be joining you, but here we are just showing you the glimpses and of all the faculty members, the ones who are available. Apart from that, we have Ashima Dhingra over there. She's a counselor and placement in charge for Ashtavakra Institute in admin department. Neetu ma'am, she's a librarian, senior librarian over here, Neetu ma'am. She's providing the helping hand for the Delnet facility, internet facility, and all the journals and library books. She will be giving you the brief out about this also. So all these faculty members are department I have just introduced, and in meanwhile, one by one, all the faculty members will be introducing you and telling their roles also. So once again, because we have wasted little time, so without wasting any more time, we will be starting up with the introduction of department-wise introduction and what is examination scheme, how you are going to study. So you are going to get a briefing on that. So thank you all of you. Now I would like to invite Mr. Sandeep Upadhyay, HOD VI department, to kindly come up on the stage and brief about the diploma VI course. आप सभी को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छा कोर्स चूज़ किया है।
जो कि करंट टाइम में स्पेशल एजुकेशन का काफ़ी अच्छा दौर है और आपको ब्लेसिंग भी मिलने वाली है पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतने अच्छे कोर्स को आप जो है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए शामिल किया है। हमारा ये सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो आपका कोर्स है ये 2 इयर्स का डिप्लोमा है, जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। और एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है वो सर अभी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। बाकी हम आपको ऐसे जनरली लेटर में बता दें कि आपका ईयरली एग्ज़ाम होगा और प्रत्येक हर एवरी ईयर में आपके जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, जो कि सेमेस्टर को इंक्लूड करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना, 2 इयर्स कोर्स के डिप्लोमा 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। और जनरल ये जो कैरिकुलम है ये ऑब्जेक्टिव बेस यानी नीड बेस, नॉलेज बेस एंड स्किल बेस नॉलेज आपको यहाँ पे गेन होंगे, जो कि कैसे आपको अपने स्पेशल चाइल्ड को कैसे हैंडल करना है और कैसे उनको जो है आगे की तरफ प्रमोट करना है, जिससे अपना ईयर बाइज ईयर्स अपना जो कोर्स प्रमोट होता रहे और उनकी क्लासेस प्रमोट होते रहें, तो उस लेवल पे हैं। सेकंड बात हम करते हैं नॉलेज बेस की, जो कि आपको जो अभी तक आपने नॉलेज लिए हैं उससे काफ़ी हटकर नॉलेज आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, जब विजुअल इम्पेयरमेंट से जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं उन्होंने एक वर्ड सुना होगा, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि एक जो अभी तक आपने लेटर फॉर्म A to Z या हिंदी वर्णमाला के आ से ज्ञा तक या नंबर्स 1 2 3 से लेकर के 100 तक के जो आपने अभी तक केवल प्रिंट में या ओरल आपने सुने हैं या देखे हैं, आपको इसमें ब्रेल लिपि के फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा। वो आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छा नॉलेज आपके लिए हो सकता है, एक नई इमेजिंग हो सकती है कि कैसे बच्चे ब्लाइंड्स डॉट को छू करके लर्न करते हैं, यानी वो सारे लेटर्स को कैसे डॉट के थ्रू जो है सीख जाते हैं कि हमें कैसे नाम लिखना है या सेंटेंस को लिखना है या वर्ड्स को लिखना है, राइट। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं स्किल, जो सो अभी मैं बात कर रहा था कि आपका करिकुलम ही पूरा डिजाइन हो रखा है, स्किल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड एंड नीड बेस्ड करिकुलम को हम डिवाइडेड कर रखे हैं स्पेशल एजुकेशन फील्ड में। ओके, उसके बाद अटेंडेंस की बात आती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है अटेंडेंस का। जब तक हम अटेंडेंस अपनी 80% कवर नहीं करेंगे तब तक हम एग्जामिनेशन में अपीयर होने लायक नहीं है। ये आपको माइंड में अपने सेव रखना पड़ेगा और पूरी कंप्लीट डिसिप्लिन में रह करके, एक मैनर्स में रह करके आपको पूरे अटेंडेंस को मेंटेन रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। जो पैटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न है आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर रखा हूँ। इस पैटर्न में आपके टोटल जो पार्ट हैं यानी जो टोटल सेक्शन है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे। ये आपको सब कुछ जो है 2 इयर्स के प्रोग्राम में आपको सारी चीज़ लर्न हो जाएंगी, कैसे हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा। मैंने कुछ छोटा सा अभी डिस्प्ले कर रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं, एमसीक्यू बेस, एंड सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चंस होंगे, और थर्ड जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और जो कि 30% क्राइटेरिया होती है। और 4 क्वेश्चंस जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। ये चीज़ को हम आपको ब्रीफ में समझाएंगे जब आप अपनी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट अलॉटेड की, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। आपको जो कि ये सारे पेपर जो 6 पेपर डिस्प्ले हो रखे हैं, ये आपको फर्स्ट ईयर्स के कोर्स में ये 6 पेपर आपको लर्न करने हैं, पढ़ने हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको स्कूल बेस और क्या कहते हैं कॉलेज में जो एक्टिविटी करनी है, असाइनमेंट्स हों या आपकी कुछ प्रोजेक्ट्स हों या कुछ आपके पीपीटी के थ्रू आपको ये सारी चीज़ पेपर्स वाइज आपको प्रेजेंट करने होंगे। टोटल 6 पेपर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स पेपर की। प्रैक्टिकल्स पेपर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। जो अभी मैं आप बात कर रहा था कि ब्रेल ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। विदाउट ब्रेल हम ब्लाइंड्स बच्चे को बिल्कुल भी किसी भी तरह से ना हैंडल कर सकते हैं, ना उनको प्रमोट कर सकते हैं, ना उनकी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए ब्रेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अभी ये चीज़ आप घबराना मत कि अभी एक दिन में कैसे लर्न हो सकता है। ये सारे जो कोर्स प्रोग्राम हैं ये 1 ईयर्स के हैं। अभी मैंने फर्स्ट ईयर्स का डिजाइन कर रखा है। ऐसे हमें एज इट इज सेकेंड ईयर में भी इस कैरिकुलम को पूरे फॉलोअप करने हैं। ओके, हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी ये होती है कि हमें कैसे, अभी मैं बात कर रहा था ना कि स्किल बेस्ड नॉलेज, आपके इसमें स्किल तभी आएगी जब आप उन ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करेंगे। यानी मेरे पास काफ़ी दिल्ली में, अगर हम दिल्ली की बात करें तो टोटल इतने सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल गवर्नमेंट्स के भी हैं, डीएसडब्ल्यू के भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। ये सारे स्कूल्स हैं जो कि दिल्ली एरिया में हैं। जैसे अगर हम बात करें अष्टावक्रा स्कूल, जहाँ पे आपने एडमिशन ही लिया है, आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे। सेकेंड बात करते हैं गवर्नमेंट बॉयज ब्लाइंड स्कूल जो कि जीटीवी नगर में है। यहाँ पे
सीनियर सेकेंडरी यानी 12th तक के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, 1 to 12th क्लास के लिए। तो वहाँ पे आपको एक टीचिंग प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। सेकेंड, इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड स्कूल ये RK आश्रम में है, ये भी ब्लाइंड स्कूल है, 12th तक रन करता है। तो यहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग करने का एक बार दोबारा अवसर मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, ये RK पुरम में है। ऐसे हमारे पास टेक्निया इंटरनेशनल स्कूल्स या होम बेस, हाँ 7 पॉइंट में हम आते हैं, जो कि होम बेस्ड सेशन एंड रिहेबिलिटेशन एज पर रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई टू स्पेशल चाइल्ड थ्रू CVR एक्टिविटी। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें CVR एक्टिविटी करनी है, जिसमें हमें बच्चों को फाइंड करना है जो कि CWSN बच्चे हों, और उनको जो बच्चे हमें स्कूल तक नहीं जुड़ पा रहे हैं, यानी जो बच्चे कॉलेज या इंस्टीट्यूट या NGO से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप उनको होम सेशन प्रोवाइड करना है। हमने अपने जो सीनियर्स हैं अभी जो करंट में हैं, वो बच्चे होम सेशन देते हैं, यानी अगर वो बच्चा यहाँ तक नहीं आ पा रहा है तो उसे हम घर जा करके उनको उनका जो ADL एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स, या उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं मोबिलिटी की, मूव करने की, हाथ को मूव करने की, पैर को मूव करने की, वो सारी एक्टिविटी, वो थेरेपी, स्पीच थेरेपी, इस तरह की हम जो है प्रोवाइड करते हैं होम सेशन के थ्रू। ओके, जो इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ पा रहे हैं या जो NGO से नहीं जुड़ पाए, काफ़ी क्या सीवियर अगर डिसेबल्ड बच्चा है तो उसके लिए हमें जुड़ना पड़ता है होम सेशन के थ्रू। एग्जामिनेशन बॉडी आपकी रहेगी NBR NIPBD देहरादून। हाँ, अब ये सबसे बच्चों की क्वारीज आती है, एंटर करते हैं कि सर हमारे बुक्स कौन से होंगे, हमें क्या बुक्स लेनी है, तो इसलिए मैंने डिस्प्ले कर रखा है। इसमें बुक्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट किताबों को मैंने इसमें एंटर किया, बुक को एंटर किया है, जो लाइब्रेरी में आपको मैम के थ्रू आपसे मिलेंगी। तो सबसे पहला पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो मैंने आपको पहला पेपर सबसे फर्स्ट बताया था आगे पीछे PPT में, उसी पेपर का डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा जी की बुक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। इसमें पूरे इंग्लिश मीडियम में पूरी किताबें इसमें राइट की गई हैं, और इसमें पूरा का पूरा सिलेबस ही आपको इसमें मिलेगा। और एस्पेक्ट्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, असिस्टिव डिवाइसेस फॉर चिल्ड्रन विद लो विजन्स, ये तमाम ऐसे इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आपको ये किताबें मिलेंगी लाइब्रेरी में, अष्टोकरा की लाइब्रेरी में। तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं और बुक्स को रीड भी कर सकते हैं, इशू भी करा सकते हैं और सबमिट भी करेंगे, रिटर्न इशू दोनों होगा। ओके, और फिर अभी जो मैं आपसे अभी बीच में थोड़ा मैं जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि अभी सीनियर्स के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं अपने कॉलेज में, इसलिए वहाँ भी जाना जरूरी है। तो मैं आपको जो बता रहा था ब्रेल लिपि, ये लिपि ऐसा डिवाइसेज है जिसपे हमें ब्रेल को लिखना पड़ेगा, राइट करने के लिए डिवाइसेज हैं, राइटिंग डिवाइसेज हैं। आप देख रहे हैं ना, रेड कलर का जो है स्लेट होता है ब्रेल जिसमें लिखी जाती हैं। सेकंड बात आती है अवेकस की, जो कि हम मैथमेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, ये भी हमारे डिवाइसेस हैं। एंड टेलर फ्रेम और ये पॉकेट फ्रेम, ये जो तमाम मैंने आपको 4 डिवाइसेस का डिस्प्ले कर रखा है, ये डिवाइसेस आपको जो है टीचिंग ट्रेनिंग या उसमें कॉलेज लेवल पे आपको ट्रेनिंग लेवल पे मिलेगी, और इसी के थ्रू आप ब्रेल को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। रीडिंग और राइटिंग दोनों की यूज़ होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं अवेयरनेस की। हमें जो भी मैं बताया कि CVR के थ्रू हम बच्चे को फाइंड आउट करते हैं, उस CVR के थ्रू ऐसे हमें डोर टू डोर विजिट करना पड़ेगा, एक पेरेंट्स से बात करनी होगी, उनको बच्चे को गाइड करना होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बतानी होगी। अगर उनके बच्चों के पास कार्ड नहीं है या डिसेबिलिटी कार्ड नहीं है, कैंप आधार कार्ड नहीं है, तो उस तरह के हम कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं और उन बच्चों को बनाते हैं। आप लोग भी कभी ना कभी किसी न किसी बच्चों से जुड़े होंगे, कभी देखा होगा अपने अपनी लाइफ में कि हैंडीकैप बच्चे कैसे होते हैं, जो डिफरेंटेबल बच्चे हैं वो किस टाइप के होते हैं, किसी का हेयरिंग लॉस होता है, किसी के विजन लॉस होते हैं, तमाम बहुत तरह की डिसेबिलिटियाँ हैं। ये आपको क्लास टाइम में सारा चीज़ बताया जाएगा और आपको काफ़ी इन्जॉय भी होगा, अच्छा भी लगेगा कि हमें नए चीज़ से इंटरेक्ट हो रहे हैं। सेकंड हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि डिस्प्ले के थ्रू आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ग्लिम्पसेस हैं कुछ, जैसे डोर टू डोर कैसे विजिट करना है, अपने बच्चों को कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये इस तरह के ट्रेनिंग्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, ब्लाइंड जो ये टीचर्स हैं सारे ट्रेन टीचर्स हैं, आज के टाइम में कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी लगे हुए हैं बच्चे, पास आउट बच्चे हैं, और ये इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, कैसे ब्लाइंड्स को मूव करना है, कैसे उनको मोबिलिटी ट्रेनिंग देनी है, कैसे उनको ओरिएंटेट करना है, कैसे उनको बताना है कि चेयर पे कैसे बैठना चाहिए, टेबल्स के नीचे कैसे हमें कुछ सामान गिर जाए तो कैसे उठाना है, कुछ ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से टकराए तो कैसे उनसे बचना है, जो तमाम हमारे बैरियर्स हैं उनसे कैसे अवेयर हों, इस चीज़ के बारे में हमने कुछ डिस्प्ले कर रखा है, कुछ ग्लिम्पसेस बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। बाकी ये ट्रेनिंग के दौरान आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कैसे हमें ट्रेनिंग लेनी है। सेकंड हम बात करते हैं कि हमें वर्कशॉप भी, हाँ जिससे मैंने बताया ना, मैंने अब आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार CVR को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, मैं CVR का इंचार्ज भी हूँ, है ना, इस वजह से मैंने कुछ ग्लिम्पसेस और कुछ फोटोज इसमें डाल दिए जिससे आपका CVR एक्टिविटी भी पूरा होता रहे। तो CVR के थ्रू जो हम बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं, गवर्नमेंट अपना जो स्कीम है गवर्नमेंट के तहत कि कैसे बच्चों को
स्मार्ट के इनपुट डिवाइसेस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, उस तरह के हम कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे अष्टवक्रा कॉलेज ने इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज कर रखा है। आप देख रहे हैं ना, व्हील चेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, है ना। कुछ लोअर लिम्स के लिए भी कुछ टूल्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस तरह के कैंप हम ऑर्गेनाइज करते हैं और बच्चों को फ्री सर्विसेज देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ते हैं और उनको अपने साथ जोड़ते हैं, अवेयर भी करते हैं उनके पेरेंट्स को, और उनको बताते भी हैं कि इस तरह की अगर आप इंस्ट्रूमेंट लें या डिवाइसेज लें तो बच्चा काफ़ी अपने आप में डिपेंडेंट हो सकता है ना। किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, खुद इंडिपेंडेंट हो सकता है। ऐसे ये जो हमने एक बार कैंप ऑर्गेनाइज किया था, उस लेवल पे हमें फोटोज कुछ निकली थी जो कि न्यूज़पेपर्स में भी आउट हुए थे। तो हमने स्मार्ट केन भी डिस्ट्रीब्यूट कराया था कैंप के थ्रू, तो उस लेवल की। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी, थैंक यू। Now, I would like to invite Ms. Khyati Kohli, Assistant Professor of ID Department, to kindly come upon the stage and brief about the Diploma IDD course. Hi everyone, so I'm Khyati. So we have Diploma IDD students with us today. So this is the course. First of all, welcome everyone to this special education course. And जिन्होंने Diploma IDD course में admission लिया है, this will include 3 disabilities, which is ASD, LD and ID. So IDD is intellectual and developmental disabilities, जिसमें आप intellectual disability के बारे में भी पढ़ेंगे, learning disability के बारे में भी पढ़ेंगे, and autism spectrum disorder ASD के बारे में भी पढ़ेंगे. So किसी भी कोर्स को पढ़ने से पहले we should know the goals of the course, कि हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, right? So as you can see that you will in this course during the 2 years you will learn about various disabilities, and you will understand the needs, because you will be working, you will be getting training how to work with children. So you will identify different needs of learners, उनकी क्या needs होती हैं, and what are their educational needs, what are their vocational needs. So you will learn during the course when you will be here with us, क्योंकि आप training, you will get trained in this course for the 2 years. So you will learn about various methods which will include कि हमें special education में teaching methods क्या use करने चाहिए, बच्चों को पढ़ाने चाहिए, क्या टेक्निक्स यूज़ करके हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, एंड क्या हम बिकॉज स्पेशल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी जनरल एजुकेशन. तो यू विल बी लर्निंग अबाउट वेरियस पेडागॉजी सब्जेक्ट्स, ऑल्सो वेरियस अदर सब्जेक्ट्स in this course. So overall goal है of this course. Next is we have some objectives of this course, कि हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, right? So in this course you will learn about the disabilities also, and you will get the knowledge कि ये सब जो भी हम disabilities पढ़ रहे हैं उसमें you will learn about कि करिकुलर स्ट्रैटेजीज कैसे होती हैं, हमें इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करिकुलम लेके पढ़ाना है, क्या मेथड्स लेके पढ़ाना है, राइट? सो नेक्स्ट इज वी ऑल्सो यूज वेरियस टीचिंग अप्रोचेज एंड वी यूज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज, क्योंकि आप स्पेशल एजुकेटर बनने जाएंगे आगे. You will meet children with autism, children with learning disability, children with intellectual disability, right? So उसमें हर बच्चे की नीड अलग होगी, है ना? तो इसीलिए हम लोग उनको पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचिंग अप्रोचेस यूज करते हैं. ASD के लिए टीचिंग अप्रोचेस अलग होती है, LD के अलग होती है एंड ID के अलग होती है. एंड वी ऑल्सो यूज डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज, क्योंकि बच्चा जब क्लासरूम में है वो क्लासरूम में रह के क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज सीखेगा, क्या क्लासरूम में आपको वही क्लासरूम मैनेजमेंट आपको सिखाना है उसको. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज दैट we provide various provisions also to educate the children with disabilities, क्योंकि वो भी we want to include them in the society with us, and we use various assessment tools and techniques for planning the educational. ये आप during the course पढ़ेंगे कि हमें इन बच्चों के लिए assessment tools जो है use करना
ज़रूरी है। हमें उनको एसेस करना, जब वो एडमिशन लेते हैं, आते हैं, स्कूल आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, डायग्नोस करना, वेरियस लेवल पे उनको एसेस करना। सो इन ASD, LD, ID तीनों में आप डिफरेंट असेसमेंट टूल्स यूज़ करके उनको एसेस करेंगे। And you will also use various techniques to help them supports with students who have high support needs. कुछ बच्चे होते हैं जिनको कम सपोर्ट की जरूरत होती है और कुछ बच्चे होते हैं जिनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट इज टू रियलाइज इंपॉर्टेंस इन रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी, क्योंकि वी आर वर्किंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो उसमें सिर्फ उनके पेरेंट्स, सिर्फ वो बच्चा ही इंक्लूडेड नहीं है, उसमें हम सब इंक्लूडेड हैं, कम्युनिटी इंक्लूडेड है और उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स इंक्लूडेड है। ओके, सो दिस इज द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। So, as this course is recognized by Rehabilitation Council of India and its examination body is NBER, जो है NBER ये national board है एग्जामिनेशन का, जिसके थ्रू जो निपमेड है एग्जाम कंडक्ट करवाता है। सो ये जो कोर्स है, आप 2 साल का कोर्स रहेगा। फर्स्ट ईयर में आपकी 80% अटेंडेंस विल बी मैंडेटरी, ऑल्सो द सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में 80% अटेंडेंस जो होगी वो मैंडेटरी रहेगी। सो इफ यू हैव फर्स्ट ईयर अटेंडेंस 80% आपकी फर्स्ट ईयर में होगी, देन ओनली यू विल बी promoted to the second year. So as you can see, this is the course structure which includes 6 theory paper. मतलब आप फर्स्ट ईयर में 6 theory paper पढ़ने वाले हैं। we will provide you the syllabus, जो भी पूरा syllabus होता है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का। So this is the syllabus just of first year, जिसमें आपके थ्योरी पेपर सिर्फ फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे 6 थ्योरी पेपर पढ़ेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे पेपर के नेम भी देख रहे हैं, उसके आवर्स भी हैं। आपके इंटरनल मार्क्स विल बी ऑफ 30 मार्क्स each पेपर। ईच पेपर इंटरनल विल बी ऑफ 30 मार्क्स, क्योंकि जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। एक्सटर्नल मार्क्स विल बी ऑफ 45। ओके, जो आपका मेन NBER एग्जामिनेशन बॉडी कंडक्ट कराते हैं, इट विल बी ऑफ 45 मार्क्स। सो आपका टोटल विल बी ऑफ 75 मार्क्स। सो नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एग्जाम पेपर, क्योंकि आपके थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं, जिसके लिए आप ट्रेनिंग के लिए दूसरे स्कूल्स में भी जाते हैं, स्पेशल स्कूल्स में भी जाते हैं, इंक्लूसिव स्कूल में भी जाते हैं, बिकॉज हेयर यू विल गेट द हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जहाँ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको इंटरनल के मार्क्स मिलेंगे। एज यू कैन सी, सब पेपर्स के आपके जो 5 पेपर्स हैं इसमें मेंशन्ड है कि इंटरनल मार्क्स प्रैक्टिकल के कितने होंगे, एक्सटर्नल के कितने होंगे। So this is the composition of question paper as per NBER. So your final examination question paper will be like this, which will include the objective type questions. Objective type में आपको पता होगा कि objective type questions कैसे होते हैं. So that will be of 5 marks, and answer in 1 and 2 sentences. That will be there. They will give you 2 questions which will be of 10 marks. And it will also include short question and long questions, जो इतने marks के होंगे as it is mentioned. So we have an ERP portal available. This is the link mentioned, but we will also provide you the link जो आपके जो इन्फॉर्मेशन आपको सारी इन्फॉर्मेशन, दिस इज द ERP पोर्टल जो हमारा इंटरनल अष्टवक्र का ERP पोर्टल है, वेयर ऑल द लेक्चर प्लान्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, सो यू कैन हैव द एक्सेस टू दिस वेबसाइट. नेक्स्ट इज असाइनमेंट्स. आपको अलग अलग असाइनमेंट्स दिए जाएंगे विच इज अगेन द पार्ट ऑफ योर इंटरनल असेसमेंट. जो आपके इंटरनल्स के मार्क्स होंगे, सो इट इज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट. पेडागॉजी बेस्ड असाइनमेंट होंगे, MCQ बेस्ड होंगे, एक्सटर्नल क्वेश्चन पेपर बेस्ड असाइनमेंट होंगे. ये सब आपको दिए जाएंगे ड्यूरिंग द 2 years. दिस इज द एग्जामिनेशन बॉडी NBER. ये निपमेड की एग्जामिनेशन बॉडी है जो आपके फर्स्ट ईयर एनुअल में भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं एंड सेकेंड ईयर में.
So this is the academic sport event which is conducted by AIRSR, Ashtavakra Institute. So as you can see that everyone participates, our students participate for the events which we are conducting. So this is the sports day event. Next is academic event. This is the national conference जो हम entire the course organize कराते हैं. National conference होती है जो RCI के through होती है. Academic, this is also a part of academic, जहाँ जब external exam होते हैं, that is practical, तो उसमें ये यहाँ पे आप जो ये picture देख रहे हैं, ये external practical की है. Now, so this is also CBR, this is community based rehabilitation program, which is again during the course, which is conducted during the course, जिसमें आप जाके, this is basically an awareness program, एक अवेयरनेस एक्टिविटी प्रोग्राम है जहां आप सोसाइटी में सबको सोसाइटी को अवेयर करने के लिए और बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये CBR प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करते हैं. दिस इज द एकेडमिक इवेंट जो ऑटिज्म डे, दिस इज वर्ल्ड ऑटिज्म डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है. सो एजुकेशनल विजिट, इट विल ऑल्सो, दिस कोर्स विल ऑल्सो इंक्लूड यू to have your teaching practice, have your training, have your observational visits, have your educational visits in different institutes and schools also. So these are the names of these schools. कि जहाँ हमने visits कराई हैं, these are some of the names of the schools. Thank you. Now, I would like to invite Mr. Jitendra Srivastava, Assistant Professor of Hearing Impaired Department, to kindly come up on the stage and brief about the Diploma HI course. Think about those persons who are not so capable to hear. It's a very big question mark on us. We are thinking that we are going to be a good teacher. No. Think about only aspect that we want to be a good learner. We want to be a good learner. One more thing, think about those children who are disabled. For your knowledge, for your information, for your kind consideration, this disabled word is now substituted from everywhere. A very precise and the new words is used for these things. The word is Divyang Jan. Hindi name, Divyang Jan. And very new word in this field is Divyang Mitra. Divyang Mitra, a friend for a disabled. I know you all become a very good teacher, but act on a thing that you prove yourself as a good learner. Why? Because with you want to work with, to whom you want to work with, they are not so that much capable. उनके साथ आपको काम करना है. And with respect to my field, that is hearing impairment, before my introductory word जो हमने किया, हमने बोला था, my name is Jitendra Srivastava. This is the sign language which I used. Indian Sign Language, very common, very understandable, and very knowledgeable. Related with your HI field, related with your hearing impairment, your course is divided into 4 semesters, right? 2 साल का कोर्स है, 4 साल के लिए वो डिवाइड है, 4 सेमेस्टर के लिए डिवाइड है. कोर्स के अंदर आपके पास हर सेमेस्टर के अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं एंड 1 प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकल एरिया आपका हर सेमेस्टर के लिए डिफरेंटली डिवाइडेड है, इंक्लूडिंग योर स्कूल विजिट्स, योर टीचिंग प्रैक्टिसेस, योर ऑब्जर्वेशंस, योर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लर्निंग एंड अदर रिलेटेड फैक्टर्स. पेपर कितने नंबर के होते हैं सर? ठीक है, पेपर आपका हर एक सेमेस्टर के अंदर जो 3 पेपर हैं, 75 मार्क्स का पेपर है. आई एम वेरी प्रिसाइज विद माई वर्ड्स, प्लीज़ लिसन केयरफुली, सबको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा इससे. 75 मार्क्स के अंदर 30 मार्क्स
आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, इंटरनल मार्क्स हैं, और 45 का जो पेपर है आप बाहर जाके सेंटर पे देके आएंगे. सेम फॉर all 3 papers in semester 1, semester 2, semester 3 and semester 4. All comprises with 1500 marks in your 2 years. 2 साल के अंदर 1500 मार्क्स का आपका इवैल्यूएशन होगा. ध्यान से सुनिएगा, इवैल्यूएशन होगा. इस फील्ड में आए हैं, वेरी नाइस, एंड आई रियली congratulate to you that you begin your journey with Ashtavakra Institute. Why? In this 2 years, definitely, in the forthcoming year also, you will all connected with, directly or indirectly, with the number of activities of this institute. Number of activities. We are with the different club activities. For example, for me, my club is उन्नत भारत अभियान. उन्नत भारत अभियान हिंदी के शब्द हैं, मिनिस्ट्री के वर्ड्स हैं. एक बार वेबसाइट पे जाके चेक करिएगा कि व्हाट आर द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ दे शेड्यूल्ड फॉर उन्नत भारत अभियान. फॉर एग्जांपल, प्लांटेशन ड्राइव्स, सेव वाटर, वाटर कंजर्वेशन, and so many other activities and your related participation. Very 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 important. अभी शुरुआत में लगता है कि why only me. कॉलेज में आप आए हैं, आफ्टर 2 years you will all be surprised in the marketplace. जब आप जाएंगे ना, यहाँ का एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, you will see that maximum number of certificates you are with after 2 years. और जो सर्टिफिकेट्स आप लेके गए हैं, दे ऑल आर वेरी मच वैल्यूएबल. प्रिंसिपल्स के पास जाएंगे, मीटिंग्स में जाएंगे, वर्कशॉप्स में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे कि आपके पास इतने नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स विद योर एप्रिसिएशंस. आई जस्ट रिक्वेस्टेड टू यू, बी विद योर वेरी काइंड हार्टेडनेस with this course. This is not all about the special education. This is all about your choice. This is all about what you want to do for the society. ठीक है, 2 साल के सिलेबस के अंदर करिकुलम काफ़ी डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर भी, बट द प्राइम मोटो हेयर ओनली इज वाई यू आर डूइंग दिस कोर्स. क्यों कर रहे हो भाई कोर्स? सो मैनी रीजन्स आर देयर. ऑब्जेक्टिव्स आर समहाउ सिमिलर विद एवरीवन. हर किसी के साथ सारे सिमिलर ही हैं. हमारे भी कोर्स के अंदर सारे सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे. वन ऑब्जेक्टिव विच यू कैन नॉट गेट इन एनी ऑफ द करिकुलम. वन ऑब्जेक्टिव दैट यू विल नॉट गेट एनीवेयर. I know you all are influenced by the many factors before doing this course. कोर्स करने से पहले आप सारे के सारे अलग अलग फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हुए हैं. फैक्टर्स नंबर वन, कोई फैमिली के अंदर, नियर वन के अंदर गवर्नमेंट जॉब में तो है, और उन्होंने बोला है कि इस कोर्स को करिए, बहुत जल्दी ही एक सरकारी नौकरी का सुख मिलेगा. है, दिस इज़ अ हार्ड रियलिटी. डू योर लर्निंग, बी इन द डिसिप्लिन, do with your kind efforts, and always remember one thing. There is a one who is waiting in a classroom. भारत सरकार पिछले 14 साल के एफर्ट्स के अंदर 2009 से 11 और 3 14 साल के अपने एफर्ट्स के ज़रिए RTI 2009 एक्ट भी बना दिया. RTI 2009 एक्ट को अमेंड कर दिया गया, राइट टू एजुकेशन, उसको अमेंड कर दिया गया 2012 के अंदर भी. यूनाइटेड नेशन UNCRPD एक्ट्स बनाए गए हैं. उनकी ही कुछ बदौलत हमारे पास RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, एक कानूनी जामा, एक कानूनी पहचान उन दिव्यांगजन को दी गई है. और इस कोर्स को करने के बाद ना, सिर्फ इस बात का एक हम्बल नोट अपने पास रखिएगा कि देयर इज़ अ वन हु इज़ वेटिंग ऑफ यू इन द क्लासरूम. जो उनके माँ बाप नहीं कर पाएंगे ना, वो आपको वो रोल प्ले करना है. और 2009 से अगर कोई बच्चा क्लास में वेट कर रहा है, तो मान के चलिएगा अगर 12 साल का होगा तो वो 26 साल का एक मैच्योर आदमी बन के बिना एजुकेशन के बाहर निकल चुका होगा, सिर्फ आपकी वेट के लिए.
कि आप आएंगे और एक उनको एक बेहतर शिक्षा और एक उनका स्किल डेवलपमेंट करके जाएंगे। प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर माई वर्ड्स। Thank you, sir. Now I would like to invite Mr. Vikas Kumar, faculty, MD department, to introduce their course. Good morning, all of you. I Vikas Kumar from MD department. जैसे कि अभी आपने जितेंद्र सर को सुना, उन्होंने बताया जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके साथ हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, साइन लैंग्वेज उनके साथ हम यूज करते हैं। और उससे पहले आपने सुना संदीप सर को, उन्होंने बताया जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके साथ हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। उनको हम ब्रेल लिपि सिखाते हैं जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में। मल्टीपल डिसेबिलिटी एक ऐसी डिसेबिलिटी होती है जिसमें दो से ज़्यादा डिसेबिलिटी इंक्लूड होती है। आपके कोर्स में जो जितने भी बच्चे जो एमडी वाले आए हुए हैं, आपके कोर्स में 3 डिसेबिलिटी को मेन प्लेस दिया गया है जिनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। एक है सीपी, जो बच्चे शारीरिक रूप से जिनको प्रॉब्लम्स रहती है फाइन मोटर या ग्रोस मोटर की। और सेकंड डिसेबिलिटी आपकी है डेफ ब्लाइंड, जिसमें दोनों डिसेबिलिटी होती है। जिस बच्चों को हेयरिंग प्रॉब्लम होती है या विजुअल इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम होती है उन बच्चों के लिए। और तीसरी डिसेबिलिटी होती है आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें कोई भी 2 डिसेबिलिटी या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी इंक्लूड होती है। हमारे में जो डेफ ब्लाइंड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हम जो अभी आपको बताया गया है कि ब्रेल लिपि ब्लाइंड बच्चों के लिए यूज होती है, उसको भी आपको सिखाया जाएगा। और उसके बाद जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं जो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज़ है कि आपको 2 डिसेबिलिटीज़ के बारे में आपको अच्छे से सिखाया जाएगा कि आप कहीं भी जाएंगे किसी भी बच्चे के साथ आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। बच्चों, ये जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं इनको एक नाम दिया गया है CWSN चाइल्ड, यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ये भी हमारी तरह सीख सकते हैं, बस इनकी कुछ अलग एबिलिटी होती है सीखने की, कुछ इनका लेवल अलग होता है, कुछ इनकी अलग नीड्स होती है। बस वही हमको आइडेंटिफाई करनी है और वही उस आइडेंटिफाई करके उस पर हमें वर्क करना है कि हम किस तरीके से उनको किस मेथड के थ्रू हम उसको सिखा सकते हैं। यही सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। और मैं बात करूँ एमडी के सिलेबस की, एमडी के सिलेबस में फर्स्ट ईयर में आपके 6 थ्योरेटिकल पेपर होंगे, 6 प्रैक्टिकल होंगे। सेम एज इट इज़ आपके सेकेंड ईयर में भी 6 थ्योरेटिकल पेपर है, 6 प्रैक्टिकल पेपर है। सेम आपका नेशनल जो आपका एग्जामिनेशन बॉडीज़ है वो NBR है और आपके 75 मार्क्स के आपका एक पेपर होएगा। इंडिविजुअल सब पेपर में आपको क्लियर करना ज़रूरी है। और अटेंडेंस का भी आपको बता दिया गया है, सेम इसमें भी एमडी में भी आपकी 80% अटेंडेंस मिनिमम होनी चाहिए। और आपको बताया है कि CBR एक्टिविटीज़ वो भी आपके में होएगी, प्रैक्टिस टीचिंग भी आपके में होएगी। इसके लिए हम अलग अलग स्कूल में हम विजिट करते हैं और आपकी एजुकेशनल विजिट होती है, एक इंडोर होती है एक आउटडोर। इंडोर मीन्स इन दिल्ली में हम किसी स्कूल्स में हम विजिट करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर बच्चों जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, सीखते हैं। और आउटडोर भी हम जाते हैं, जैसे आपका कई बार हम लास्ट टाइम हम मनाली गए थे, वहाँ पर कुल्लू में एक हमारा एक स्पेशल स्कूल था, वहाँ पर बच्चों ने विजिट करा था। तो आपके हर साल 2 एजुकेशनल विजिट होएगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक हमारे यहाँ पर फिट इंडिया यूथ क्लब भी हमारे यहाँ पर चलता है, जहाँ पर हमारे एवरी मंथ फिर आपकी फ़िटनेस को लेकर कोई ना कोई इंडोर एक्टिविटी या आउटडोर एक्टिविटी करवाई जाती है। और ऐसे ही हमारा एक एनुअली एक स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है जो मोस्टली फरवरी या मार्च में कंडक्ट होता है। तो उसमें भी आप कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किसी भी स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। थैंक यू। I hope all the in-charges explained nicely about their respective courses. Now, I would like to invite Ms. Sanjana Mittal Ma'am, Deputy Director, for briefing on student welfare, including Student Grievance Redressal Cell.
Ashtavakra Institute, now we have already discussed, all the faculty members, they have already explained you about IG department, HI department, VI department and IDD department. So we have all briefed out. आपको ये बताना ज़रूरी था, induction का मतलब ही होता है कि so that we give you a skeleton of what all subjects you are going to study, what all activities are going to be included. Now, these are the subjective knowledge and practical that has been briefed out by the various departments head over here. So, we have a student welfare department over here also, and in student welfare departments, we have all the clubs, we have committees and cells. Three things, three words you are going to understand very clearly. We have clubs over here, then we have cell over there, and third is we have committees. So all of you, you have to be part of one or the other club or committee. So now I'm going to brief you about, we have just now only HI department, Unnat Bharat Club we have, Mr. Jitendra Srivastav sir, he was the head of Unnat Bharat Club. We could see over there, these are the different clubs. Ek Bharat, Shresh Bharat Club is there, NSS Club is there, headed by Anupma Gupta ma'am. Fitness Club, where all your sports related activities are going to take place, and that is called as Fitness Club. Eco Club, all the green initiatives, and this is a club which are initiated by the government. So you have to participate in these clubs. This is Eco Club. Then we talked about, I also gave you, apart from this, we have also introduced new clubs over there, and that is Gender Club. Gender Club is again where all the activities and awareness programs are going to take place in gender sensitive club. Then we have Good Samaritan, which is not included over there, but we have Good Samaritan Club also, where in Good Samaritan Club you will be getting a chance to give something to the society. So all our students, they celebrate, that is the days with outside also, with outside world also, like they go to different orphanages, they go to different camps, the NGOs over there to celebrate it. And as a part of CBR activity, we have told you that you have CBR activity, 2 CBR activities that are mandatory, one in first year and one in second year, where you are going to identify special needs students and you are going to rehabilitate them at Ashtavakra Institute. Either we are going to give them the admission at Ashtavakra school, or our students, they are going to give them home-based education at their home only. So that is included over there. Apart from that, we have scholarship scheme, and I would like to call upon Ashima Dhingra over here also, because you are going to contact her for all your scholarship schemes. EWS category scholarship schemes, SC, ST category scholarship scheme, these are for the welfare of the students. Ashima Dhingra ma'am, she is the in charge for, that is campus placement, she is the in charge for training, and she is in charge for your scholarships. All these activities she is heading, and any problem is there, you can always come and contact her. Apart from that, we also have Students Grievance Redressal Committee, and in Student Grievance Redressal Committee, if any problem is there with any of the students, then you can write a written complaint. Am I clear? So you can write that complaint, and that complaint is going to come to us, and we are going to take an action on that. So that comes under Students Grievance Redressal Committee. Anti-ragging and internal complaint committee, again this is set, that is for the scholarship. SC and ST committee, a lot of functions and awareness programs take place, and different visitors, they come at our institute and tell us about what scholarship and what different schemes are there. Yesterday only we got an opportunity to participate at Japanese Park, where the OBC commissioner was there with us, and we got the platform to perform over there, a very big platform over there. So time to time these activities takes place, and we are going to give you under these headings, the activities would be taken up. Please change the slide. Okay, this we have already told about. We also have committees, anti-ragging committee. If any child is being like tortured or anything, they face any problem, so they can contact different people of the different committees.
this canteen. Apart from that, I've given you a brief about the committee, but apart from that, we have also canteen committee, where in case you want to have other kinds of foods also with according to your choice, and if the committee members they permit it, so we take a decision, that is appointing a representative of the canteen committee and the committee members, and we decide and hold a meeting, and we can change the menu also. This is all canteen committee take place. Okay, apart from that, members of the student welfare, different members are there. Okay, no need for this thing, PPT, I'll share like that only. Okay, as a part of Ashtavakra Institute, we have an ERP. ठीक है? You will be getting a password and user ID for that. Everybody, ठीक है? And in that, अभी आपको teachers ने भी बताया कि you are going to get your lectures. आपके सारे lectures uploaded होंगे उस ERP पे. Make use of that. आपके lectures plan है वहाँ पे, आपके assignments हैं, आपके notes हैं वहाँ पे. आप अपना fees pay करना चाहते हैं, we will prefer you pay your fees through your ERP only. Am I clear? So all of you please, आपके सारे teachers they pay lot of that is stress on that. They work hard and they upload the notes also over there. So you can get all that material at your ERP using your user ID and password. One more thing we also have, that is Ashtavakra website. Whatever events takes place. Now why we were waiting over there in the morning? Because this event is also going to be uploaded on the YouTube. We have got entire team at Technia Group of Institution where all your functions, where everything is recorded, edited. After editing, it is posted on the YouTube. Because Technia is itself has a Technia TV. अगर आप browse करेंगे अपना Google पे देखेंगे, अगर Technia TV डालते ही you'll get number of your lectures are also recorded. So all these things will not be explained in the classes. So that is why one collective platform is there जहाँ पे आपको हर तरीके की information हम दे रहे हैं. तो आप अपना टेक्निया टीवी सब्सक्राइब करेंगे और स्पेशल एजुकेशन डालेंगे तो लॉट्स ऑफ नोट्स आर अपलोडेड बाय द टीचर्स. सो यू आर गोइंग टू गेट दैट लेक्चर्स आल्सो, ऑनलाइन लेक्चर्स. Am I clear? So one thing I told you, YouTube, ठीक है, टेक्निया टीवी. Then second I told you about ERP. Third thing I told you about the website where all your notices, circular from IP University, circular from Rehabilitation Council of India, all are uploaded over there. Clear all of you? Apart from, we have 2 libraries at Ashtavakra Institute, and Neetu ma'am, please kindly come up. She is going to give you 1 minute. She is going to give you a little brief out ki what all is there in the library. So I want her that she should come up and she should explain in 1 minute only ki what library she holds over there. She is taking charge and how many books are available, Delnet facility is available. So I want you to just explain. Good afternoon, everyone. My name is Neetu Singh. As a librarian, Ashtavakra Institute Rehabilitation Science Center of Research. जैसा कि मैम ने कहा लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरी के ही बारे में बताऊंगी आपको. जैसा आप सब जानते हैं कि लाइब्रेरी किसी भी इंस्टीट्यूशन या स्कूल की हार्ट एंड सोल होती है. लाइब्रेरी से आप नॉलेज गेन करते हैं, लाइब्रेरी से आप अपडेटेड रहते हैं, लाइब्रेरी में आके आप बुक पढ़ते हैं तो आपका ध्यान केंद्रित होता है. लाइब्रेरी जो है हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है. आप जैसे जैसे लाइब्रेरी में आएंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा. लाइब्रेरी में आपके कोर्स से रिलेटेड सारी बुक्स हैं हमारे पास, और बुक्स जो हैं हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल हैं. टोटल ऑफर्स हमारे पास बुक्स 5462 बुक्स हैं. ब्रेल बुक हमारे पास 270 हैं. हमारे पास जनरल्स हैं, इंटरनेशनल, नेशनल्स. डेली 4 न्यूज़पेपर मिलेंगे आपको, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स. लाइब्रेरी के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको वो डेली फॉलो करने होंगे. लाइब्रेरी में आप सबसे पहले जब लाइब्रेरी में आएंगे तो आपको एक रैक मिलेगा बाहर. उस रैक में अपना बैग वगैरह सब कुछ रख सकते हैं. और लाइब्रेरी में एंटर करने से पहले सबसे पहले आप अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे करेंगे. लाइब्रेरी में जब आप एंटर करेंगे तो आपको एक रजिस्टर मिलेगा. रजिस्टर में आप अपना नाम और बाकी की डिटेल आपको लिखनी होगी उसमें. लाइब्रेरी में कोई भी प्रकार का आप डिस्कस नहीं करेंगे. लाइब्रेरी में आपको
जो कार्ड, एक लाइब्रेरी कार्ड मिलेगा आपको, आप उससे एक बुक इशू करा सकते हैं। वो बुक्स आपको 7 डेज के लिए इशू होगी। आफ्टर 7 डेज वो आपको रिटर्न करनी होगी। किसी भी कारण आप 7 डेज, आफ्टर 7 डेज बुक को रिटर्न नहीं करते हैं, आपको पर डे आपका उसका फाइन देना होगा। रेफरेंस बुक्स, जनरल्स बुक्स, मैगजीन वगैरह आपको इशू नहीं होंगी। बुक की टाइमिंग आपकी रिटर्न और इशू की 9 से 2 रहेगी। लाइब्रेरी से आप लैब कोट, टी शर्ट और लाइब्रेरी कार्ड लेने होंगे आपको, उसकी टाइमिंग आपकी 9 से 5 रहेगी। थैंक यू। This was a thank you, Neetu ma'am. This was a general instruction. Apart from this, I would also like to explain that you can open up your mobile and you can see links have been shared in your groups, all of you. So we are there at Facebook, we are there at Insta, we are there at Pinterest. So we want that you should please like and share. This is our exclusively Technia group of institution. So I hope all of you have got that link in your groups, all of you. Yes or no? Raise your hands if you have got, please. Okay, wonderful. Clap for yourselves. That means you, and you should please subscribe right now only. Thank you so much that you're all active and you're listening very nicely. Apart from that, one thing I missed that is very important is, this is all, we are very strict, that is one part, but apart from that, we will be taking up all you people to educational visit. As we told you, 2 visits in-house we are going to have, that is in Delhi, and 1 is outside Delhi. Okay, so this is educational visit. Apart from that, 3 to 4 visits we are going to take you for the special school, which will be again an exposure for you people. And this year we are planning to hold an international trip also. Let us see what kind of the stuff we are having over there, and when we are going to plan international trip also. Okay? Let us see that.